કેન્દ્ર સરકારે કિસાનોના આગેવાન સાથે 8 રાઉન્ડ ચર્ચા કરી, પરંતુ હાલમાં કિસાન આંદોલન રાજનીતિક ચુંગાલમાં ફસાઈ ગયું છે. એટલું જ નહીં, અલગાવવાદી તત્વોનો અડ્ડો બની ગયો છે અને કિસાનોને બદનામ કરવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે, તેમ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના અગ્રણી ઇન્દ્રિશ કુમારે જણાવ્યું હતું. વડોદરા ખાતે રાષ્ટ્રીય મુસ્લિમ પંચ દ્વારા યોજાયેલા કોરોના વોરિયર્સના સન્માન બાદ ઇન્દ્રિશ કુમારે પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં આ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે 18 વર્ષ પહેલા રાષ્ટ્રીય મુસ્લિમ પંચની રચના કરવામાં આવી અને તેમાં મુસ્લિમ સમાજે પણ રામ મંદિરની તરફેણમાં રજૂઆત કરી છે. 8 લાખ મુસ્લિમ લોકોએ હસ્તાક્ષર કરીને રાષ્ટ્રપતિને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. તેમણે કાશ્મીરના અલગાવવાદી નેતાઓની ઝાટકણી કાઢતા જણાવ્યું હતું કે જો તેઓ ચીન અને પાકિસ્તાનની તરફેણ કરે છે તો તેઓએ ત્યાં જઈને રહેવું જોઈએ. મુસ્લિમ નેતા ઓવૈસીની ટીમ મુસ્લિમ સમાજમાં ખતરારૂપ છે. કોંગ્રેસ જો એમ કહેતી હોય કે ઓવૈસીની ટીમ ભાજપની બી ટીમ છે તો કોંગ્રેસને ભગવાન સદબુદ્ધિ આપે. કોંગ્રેસની નીતિની જેમ જ ઓવૈસીની ટીમ મુસ્લિમ સમાજને ગેરમાર્ગે દોરી રહી છે, જે મુસ્લિમ સમાજ માટે ખતરો છે. આજે યોજાયેલા કાર્યક્રમના પ્રારંભમાં ઇન્દ્રિશ કુમારનું સ્વાગત યુનેસ્કોના સભ્ય પ્રણવ અમીન અને રાષ્ટ્રીય મુસ્લિમ પંચના ગુજરાતના પ્રમુખ જાકીર કુરેશીએ કર્યું હતું. મુસ્લિમ રાષ્ટ્રીય મંચ ગુજરાત પ્રદેશ દ્વારા આજે વડોદરા શહેર ખાતે છાણીમાં મુસ્લિમ રાષ્ટ્રીય મંચ ગુજરાત પ્રદેશનું એક અમે જે કોવિડ-19ની અંદર જે ખૂબ સુંદર અને સરસ કામગીરી કરી એવા અમારા ભાઈ બહેનોને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના રાષ્ટ્રીય મુખ્ય પ્રચારક, રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી સદસ્ય અને મુસ્લિમ રાષ્ટ્રીય મંચના મુખ્ય માર્ગદર્શક સન્માનીય ઇન્દ્રેશ કુમારજીના હાથથી અમે એમને સન્માનિત કર્યા છે. આજનો કાર્યક્રમ અમે સન્માન કરવાવાળા અમારા ભાઈઓ છે એની અંદર એસએજી હોસ્પિટલના અમારા સિવિલ સર્જન શ્રી આરએમઓ શ્રી, જમનાભાઈ હોસ્પિટલના અમારા સિવિલ સર્જન આરએમઓ શ્રી, એવા પોલીસ કમિશનર શ્રી, મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી, તેમજ આ મીડિયાના પ્રિન્ટ મીડિયા અને ઇલેક્ટ્રિક મીડિયાના મારા ભાઈઓ, જે ઇલેક્ટ્રિક મીડિયા અને પ્રિન્ટ મીડિયાના તો અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે જે તે સમયે આપે જે લોકોની સમક્ષ ગયા બિના ડરે, કોરોનાથી બિના ડરે, અને આપે જે લોકોની સમસ્યા બતાવી અને બીજાને મદદરૂપ થાય એકબીજાને, એ વતી હું મુસ્લિમ રાષ્ટ્રીય મંચ ગુજરાત પ્રદેશ દ્વારા આપ સૌનો હૃદયથી દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ऐसा है कि 18 वर्ष पहले दिल्ली में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इस तहरीक का निर्माण हुआ. 18 साल हो गए. आज हिंदुस्तान के यूटी और प्रोविंस मिलाकर 25 से अधिक प्रांतों में इसका काम है. 350 जिलों में काम है, 800 में से, और 2600 इसकी इकाइयाँ हैं. रोज़मर्रा काम करने वाले हजारों हजार कार्यकर्ता हैं. लाखों से करोड़ों में समर्थक समूह हैं. दुनिया के 25 से अधिक देशों में भी इसके कार्यकर्ता हैं. 9 के लगभग प्रकोष्ठ हैं. यह है गैर सियासी सबसे बड़ी तहजीबी और सामाजिक, सांस्कृतिक और सामाजिक भारत का आंदोलन है. दूसरी बात, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जिन चीज़ों में एक रोल प्ले किया है, पहला था राम जन्मभूमि स्थान का निर्णय और जनता की मानसिकता. आंदोलन चलाया था, कसम खुदा की खाते हैं इमाम हिंद श्री राम का मंदिर वहीं बनवाएंगे. हजारों मीटिंगें की, करोड़ों तक बात पहुंची. जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, सरकार कानून बनाएगी, हम सब उसको स्वीकार करते हैं. इस वातावरण का हल निकला. सुप्रीम कोर्ट ने सत्य के साथ खड़े होकर फैसला दिया. सरकार ने कानून बनाया. देश में भड़काने वालों ने कोशिशें बहुत की, पर समाज का नो रिस्पॉन्स था, और इसलिए सहज सरल ये फैसला लागू होकर इस समस्या के लिए समाधान हुआ. इसी प्रकार से इस देश के अंदर 370 और 35A जो देश का, ध्वज का, कॉन्स्टिट्यूशन का, नागरिकता का, राष्ट्रगान का बंटवारा करता था, उसको लेकर मुस्लिम मंच ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया. 8 लाख हस्ताक्षर तत्कालीन प्रेसिडेंट स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी को दिए, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी मुस्लिम ताकत 370-35A को हिंदुस्तान से हटाना चाहती है. उसमें 60,000 से अधिक जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के भी हस्ताक्षर थे.
और उस समय उन्होंने कहा कि मैं डेफिनेटली आई विल टॉक विद द गवर्नमेंट। देश को इसके क्या नुकसान है और क्या चीज़ें हैं ये समझाया गया। 370-35 से हटा, देश में रत्ती भर भी कोई दुर्घटना नहीं हुई, रक्तपात मुक्त, हिंसा मुक्त, और भारत वन नेशन वन पीपल वन कॉन्स्टिट्यूशन वन नेशनल फ्लैग वन नेशनल सॉन्ग वन सिटीजनशिप वाला भारत चल पड़ा। इसी का दूसरा हिस्सा चल रहा है जिसके 300 से अधिक कार्यक्रम हो गए हैं। वह है कि पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान खाली करो हमारा है। दूसरा, अगर महबूबा कहती है तिरंगा नहीं उठाऊंगी तो पाकिस्तान चली जाओ, फारूक कहता है चीन प्यारा है तो बुढ़ापा चीन में बिताए, वह एंटी नेशनल एलिमेंट ने भारत छोड़ देना चाहिए। ऐसे मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आवाज़, उसने कश्मीर को सेटल करने में बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमानों से उसको उकसाने वाली आवाज़ नहीं मिली, बल्कि देश की एकता और अखंडता की आवाज़ आई। इसी प्रकार से 3 तलाक को लेकर केवल एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच था, सब कट्टरपंथी नेता विरुद्ध बोल रहे थे, नेता पार्टियां चुप थी। आवाज़ उठी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सरकार का कानून आया, 8.5 करोड़ मुस्लिम महिलाएं, उनको 3 तलाक के अत्याचार से मुक्ति मिली। 8.5 करोड़ मर्द जो जुल्म से जन्नम नर्क जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, उनको रोकने का काम किया। ऐसे अनेक खूबसूरत काम करते हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इस समय एक ही काम कर रहा है। इस देश में जो अलगाववाद है, कट्टरवाद है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए चुनौती है, उनके प्रति सावधान करना और देश के मुख्य धारा और अपने मजहब और कौम में आई हुई कुरीतियों से मुक्ति हो। इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुसलमानों की मुख्य धारा का आंदोलन है, मुसलमानों में समाज सुधार का आंदोलन है, मुसलमानों में सब मजहबों में भाईचारा पैदा हो, इसका आंदोलन था, है और रहेगा। अखंडता की वकालत करते हैं, तो दूसरी ओर AIMIM की भूमिका को आप किस नजरिए से देखते हैं? ऐसा है, मैं ओबीसी का दल या अजमल आदि ऐसे जो दल हैं उनको देखता हूँ। पहला ये कि वह मुसलमानों को अलग थलग रखना चाहते हैं, वह मुसलमानों को मुख्य धारा से काटना चाहते हैं, इस बात का वो आंदोलन है। दूसरा, हिंदुस्तान में मजहबों में भाईचारा हो, इसके वो दुश्मन हैं, वो नहीं चाहते हैं मजहबी भाईचारा पैदा हो, इसलिए वो मजहब की राजनीति करते हैं। देश के डेमोक्रेसी की, सेकुलरिज्म की, देश के अंदर भाईचारे की राजनीति से परहेज करते हैं। उनका ये चरित्र जगह जगह कुछ मुस्लिम वोट लेकर मुसलमानों को तालीम से, तरक्की से और रोज़गार से दूर करता जाएगा। यह एक बदकिस्मत मूवमेंट है। मैं आप सबके द्वारा ओबीसी और उनके साथियों को भगवान से, खुदा से प्रार्थना करूंगा सद्बुद्धि आए, वह मुसलमानों को हिंदुस्तान की मुख्य धारा, तालीम, तरक्की, विकास से दूर नहीं करें, बल्कि उसी में रहने दें। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से दूसरे को पूछ सर, एक सवाल है, किसान और सरकार के बीच में जो डेडलॉक चल रहा है, तो संघ इंटरवीन करेगा इस मामले में? आप बोलो। हाँ, कांग्रेस एलिगेशन कर रही है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, इसके बारे में ऐसा आपका क्या है कि कांग्रेस को सद्बुद्धि दे लोग, यही मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, क्योंकि कांग्रेस इस देश के अंदर मार्जिनलाइज होता हुआ राजनीतिक विचार और समूह है। उसने अपने गांधी जी की नहीं सुनी तो दुनिया में किसकी सुनेगा? सर, इन्हीं का क्वेश्चन इसलिए, और ये बात साफ ध्यान में रखनी चाहिए, इसलिए कांग्रेस डिसमिसल की ओर है। सद्बुद्धि आ जाए तो डिसमिसल होने में टाइम लग जाएगा, सद्बुद्धि नहीं आएगी तो डिसमिसल जल्दी हो तो जाएगा। लगता है बीजेपी ही कांग्रेसीकरण हो रहा है, सभी कांग्रेस की ओर अंदर ले रहे हैं। ऐसा है कि बीजेपी का कोई करण नहीं है, जो ये बोलते हैं वो झूठ भी बोलते हैं और साथ में वह कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत भी बोलते हैं।
आपने उनकी कॉन्स्पिरेसी का शिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी इस प्रभाव में आएगा, आप हो सकता है कल ये पूछे मुसलमान अलगाववाद के प्रभाव में था, आकर मंच अलगाववाद का प्रभाव तो नहीं हो रहा, पर आप देख रहे हैं सामने रिजल्ट क्या है। तो जो रिजल्ट देखने के बाद भी ना समझे, फिल्मी गाना है वो अनाड़ी है। सर ये जो डेडलॉक बन रहा है तो क्या संघ इंटरव्यून करेगा किसान? चलो इसके आपका उत्तर दूंगा, चिंता नहीं। और किसी का प्रश्न हो तो पूछो, नहीं तो फिर ये प्रश्न तो है ही नहीं, उसकी वकालत नहीं करनी। आपका कोई प्रश्न हो तो पूछो, मैंने मौका दिया आप लोगों को। 3-4 बातें सबके ध्यान में रहनी चाहिए। यह किसानों का आंदोलन है, परंतु धीरे धीरे किसान आंदोलन पर राजनीतिक दल कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबसे मेरा पहला निवेदन है, आप किसानों को पूरी ताकत से ये निवेदन करें कि वह अपने आंदोलन को राजनीतिक दलों के चंगुल में फंसने ना दें। दूसरी बात, यह किसान आंदोलन धीरे धीरे करके और कुछ अलगाववादी तत्वों के भी अड्डा बन रहा है। किसान तो उनको आने बुलाते भी नहीं हैं, परंतु वो ज़बरदस्ती आकर किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस आवाज़ को पूरी ताकत से उठाएं। किसान भाइयों, जो आपके आंदोलन में अलगाववाद का जहर लेकर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उनको छिटक कर दूर कर दीजिए। अपने किसान आंदोलन को किसान आंदोलन रखिए। तीसरा मेरा ये कहना है कि इस आंदोलन के अंदर जो भी किसानों की डिमांड है, भारत सरकार एक के बाद दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा 8 राउंड डायलॉग कर चुकी है। और इसलिए सारे हिंदुस्तान का किसान ये कह रहा है कि भाई आप बिल और ख़त्म करो, इससे ज़्यादा अच्छा है आप बिल में कोई खामियां लगती हैं तो उनकी चर्चा करो ताकि वो सुधर जाए। दूसरा, आप इसके अतिरिक्त कुछ चाहते हैं तो वो बताओ। जब भारत सरकार ने पूरा दरवाज़ा खोला है फॉर डायलॉग, तो आप उस डायलॉग में से समस्या का समाधान करिए। कुछ लोगों के उकसाने पर अड़ने वाला काम मत करिए। आज तो किसान भी ये कह रहा है कि अड़ो नहीं, संवाद करो और रास्ता निकालो। इसलिए जब पराली पर है, बिजली पर है, एमएसपी पर है, एपीएमएस पर है, इन सब बातों पर डायलॉगों पर निकल रही हैं, तो सरकार कह रही है क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करते जाओ। जहां आपको सुधार लगे, जो परिवर्तन चाहिए वो बताते जाओ, ताकि आपके हित के सारे काम हो जाए। आपको जहां लगता है वहां वो हो जाए। और चौथी बात ये कहूँगा आप सबके द्वारा, ये अभी पंजाब प्रेरित आंदोलन है, सारे देश का किसान इसमें जुड़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए डेडलॉक नहीं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ डायलॉग जितनी चलती जाएगी उतना ही खूबसूरत रास्ता निकलेगा। और किसान पर जो आज तक जुल्म हुआ या किसानों के साथ जो गलतियां हुई, वो सुधर कर एक हैप्पी हेल्दी प्रॉस्पर किसान, एक हैप्पी हेल्दी और प्रॉस्पर हिंदुस्तान इस डायलॉग में से बन सकता है। उसको सब मिलकर बनाएं, ऐसी मेरी आप सबके द्वारा अपील है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, अभी गुजरात में अपना पांव पसार रही है, तो सर इसको क्या खतरा माने या बेनिफिट माने? ऐसा है, मुसलमानों के लिए ये पूरा खतरा है। यह मुसलमानों को स्टेट और नेशन की मुख्य धारा से अलग करने का एक षड्यंत्र है। मुसलमान अल्पसंख्यक रहकर बहुत पछता चुका है। अब वो मुख्य धारा से कटकर अलग खड़ा होगा तो कौन सी पार्टी है जो उसको गले लगाएगी? कांग्रेस से भी वो चला जाएगा, प्रांतीय दलों से भी चला जाएगा, राष्ट्रीय दलों में भी नहीं रहेगा। तो उसमें जाएगा तो वहाँ उसका क्या होगा? इसलिए पहली बात, ओबीसी के रास्ता यह मुसलमानों के लिए सबसे घातक है। मुसलमान को मुख्य धारा से और तालीम तरक्की से दूर करने का रास्ता है। यह
सब मजहबों के लोगों से दुश्मनी पालने वाला रास्ता है। यह सब दलों से अलग होकर एक छोटे मोटे दल के रूप में जीने का रास्ता है। इसलिए मुसलमानों ने ओबीसी को समझना चाहिए। अब वो किसके कहने पर क्यों ये षड्यंत्र रच रहा है, ये तो वो जानता होगा और वो जानते होंगे, परंतु माई कैलकुलेशन आर सो क्लियर, ये उसको समझना चाहिए। इसी के साथ साथ अपना कोई भाषण ऐसा नहीं दिया जो डेमोक्रेटिक, ऐसा भाषण नहीं दिया जो सबको जोड़ता, ऐसा भाषण नहीं दिया जो सबको मिलाकर चलाने की ताकत रखता। इसका मतलब है कि वो बांटने वाला, लड़वाने वाला और गुमराही पैदा करने वाला है। इसलिए देश के किसी भी दल ने, देश के किसी भी मजहब ने, देश की किसी भी जात ने, देश के किसी भी प्रोफेशन ने, चाहे समाज सेवी हों, राजनेता नेता हों, बौद्धिक जीव हों, धार्मिक हों, चाहे पत्रकार जगत हो, उन्होंने यह जो इस देश के अंदर एक बढ़ता हुआ अलगाववाद का, कट्टरता का, हिंसा का, सबसे कटकर अलग थलग होने का जो आंदोलन है, और इसके विरुद्ध सच्चाई सबके सामने प्रस्तुत करे ईमानदारी से, यह मेरी आप सबसे अपील है। और मुझे पूरा भरोसा है समय समय पर प्रेस ने कई विषयों में एक पॉजिटिव रोल प्ले करके इस समाज और देश के प्रति बहुत अच्छा अपना क्रेडिबिलिटी क्रिएट की है, भूमिका अदा की है। फॉर दैट आई अप्रिशिएट यू एंड आई विल वेट दैट यू विल डू एंड प्ले दैट रोल। बहुत बहुत थैंक यू सर।